Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is retirement of a partner. So as from the name suggests, what do you mean by the term retirement of a partner? Retirement of a partner का मतलब क्या होता है? Suppose A, B and C are three partners. Okay. Now what they are doing? After few years they have continued the, say for example, they have continued the partnership business for 10 years. ठीक है, तो 10 years तक वो लोग अपना पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू किया. नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट after the completion of 10 years, okay, she decided to retire from the your partnership business, from the partnership firm. Okay, so under such cases the C would be considered as what? C को हम क्या बोलेंगे? C would be considered as your retiring partner or otherwise known as your deceased partner. C को हम क्या बोलेंगे? C would be known as either your retiring partner or your deceased partner. So this is known as a what? Retirement of a partner. ठीक है. Now as from accounting point of view, okay, so what we have to prepare in case of retirement of a partner, what we have to study? First of all, we will see which topic we have to study in this chapter. So first topic is your, first bit is your calculation of your gearing ratio, calculation of gearing ratio and sacrificing ratio. Okay, calculation of gearing ratio और sacrificing ratio. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको इस टॉपिक में पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ इन पार्टनर में क्या पढ़ना होगा? कैलकुलेशन ऑफ गियरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, इंक्लूडिंग न्यू रेशियो, इंक्लूडिंग न्यू प्रॉफिट रेशियो. ओके, नाउ सेकंड बिट क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है, सो हियर ऑल्सो वी हैव टू सी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विच वी हैव टू स्टडी. इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमको? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट एंड लॉस. रिजर्व्स, ओके, accumulated प्रॉफिट और लॉसेस, उसका भी ट्रीटमेंट हम देखेंगे. नेक्स्ट इज योर फोर्थ वन इज योर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, उसके बाद फिर सिंस जो रिटायरिंग पार्टनर रिटायर करेगा, दैट मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द से लोन अकाउंट. ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट इफ रिक्वायर्ड. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट. ओके, so these are all the topics which we have to study in this chapter, retirement of a partner. Now the basic thing is that what is the difference from admission of a partner and retirement of a partner? Basically दोनों में difference क्या होता है इसमें? We will discuss about the treatment of goodwill. Today we will discuss about the topic your treatment of goodwill. ठीक है, for example suppose say what will be the treatment of goodwill? Accounting treatment of goodwill. ठीक है, तो सपोज A, B and C आर पार्टनर्स. ठीक है, और सपोज C रिटायर्स. ठीक है, कौन रिटायर कर रहा है? C सपोज रिटायर कर रहा है. ओके, एंड गुडविल ऑफ द फर्म से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, old profit ratio has been given say 5:3:2. old profit sharing ratio कितना दिया हुआ है? 5:3:2. okay, now goodwill of the firm has been valued. कितना वैल्यूड किया गया है? सपोज ₹1 lakh. goodwill of the firm has been valued say ₹1 lakh and we are required to pass the
necessary journal entry. Pass necessary journal entry in case of your retirement of a partner. अब होता क्या है, अगर A, B and C या 3 पार्टनर्स, ठीक है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं और सपोज 10 years तक काम किए, ओके, दैट मीन्स वो लोग अच्छा खासा गुडविल उनका बन गया होगा. आज के रेट में गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, 1 लाख रुपीज है, ठीक है. सो वन थिंग यू मेक इट श्योर, द पार्टनर हु इज रिटायरिंग, ओके, वुड बी कंसीडर्ड एज रिटायर्ड पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर. तो अगर सी रिटायर कर रहा है तो सी क्या करेगा, सी लेके जाएगा किसका पैसा, सी हैज टू टेक हिज अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है. जब एडमिशन के केस में पढ़े थे, जब व्हेन द न्यू पार्टनर गॉट एडमिटेड इन द पार्टनरशिप बिजनेस, तो क्या करता था न्यू पार्टनर, ही हैज टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल. तो अब क्या है, अब वो सी रिटायर कर रहा है तो सी विल टेक हिज शेयर ऑफ व्हाट, हिज शेयर ऑफ गुडविल. देन हु विल गिव द शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, द गेनिंग पार्टनर, द पार्टनर हु गेन, ठीक है, क्योंकि फायदा किसको होगा, सी के जाने के बाद जाके फायदा ए बी को होगा सपोज, ठीक है. तो ए एंड बी वुड बी कंसीडर्ड एज ए व्हाट, गेनिंग पार्टनर, ठीक है. तो गेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, द रूल इज दैट द गेनिंग पार्टनर हैज टू कंपनसेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, ओके, टू हुम, टू द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है. तो जनरल एंट्री क्या होगा हमारा, एंट्री वुड बी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इनका अकाउंट से पैसा कटेगा. सो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड और अदरवाइज नोन एज योर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. रिटायरिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ओके, नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन से गेनिंग रेशियो, गुडविल एडजस्ट हो जाएगा गेनिंग रेशियो, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे सी रिटायर कर रहा है, ओके, एंड गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट व्हाट, एट रुपीज योर 1 लाख, एंड सपोज हियर न्यू रेशियो, सपोज न्यू रेशियो हैज बीन गिवन से इक्वली उन्होंने से न्यू रेशियो दिया है आफ्टर द रिटायरमेंट, योर न्यू रेशियो हैज बीन गिवन से इक्वली बोलने से 1:1 सपोज दिया है, ठीक है, सी के जाने के बाद. और हमको क्या करना है, हमको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है. सो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको गेनिंग रेशियो. ओके, सो नाउ से सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं, देखेंगे गेनिंग रेशियो. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, what is the formula, gaining ratio is equals to new ratio, formula already we have read, minus what, new ratio minus old ratio, new ratio minus old ratio, ठीक है. Now in case of A, what is the new ratio, 1:1, मतलब कितना हो गया 1/2, ठीक है, minus old ratio is how much, 5:3:2, मतलब कितना हो गया 5/10. दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 0. ये क्या हो गया, ये ए का, ए नाइदर सैक्रिफाइस नॉर गेन. नाउ इन केस ऑफ बी का केस में कितना होगा 1/2 माइनस बी का शेयर कितना है 3/10, ठीक है. एलसीएम ले लिए हम 10, 2 5 10, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2/10, ठीक है. ओके, ठीक है. सो दैट मीन्स बी क्या कर रहा है, बी गेन कर रहा है, ओके, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल. एंट्री क्या था, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हु इज गेनिंग, बी. तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर देंगे हम लोग. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, बी कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. हु इज द रिटायरिंग पार्टनर, सी है, सी इज द रिटायरिंग पार्टनर, सो टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है. अब सी का शेयर कितना था, देखो सी का शेयर था 2/10 इंटू हाउ मच, 2/10 इंटू 1 लाख, ठीक है. सो 2/10 इंटू 1 लाख, ओके, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी योर 20,000. कितना आएगा 20,000. और इसका भी कितना आएगा, इसका भी सेम
20,000. If इसका मैं gain कर रहा है 2/10, so 2/10 into 1 lakh. How much it would be your 20,000. ठीक है? Okay. So this is the journal entry in case of what? In case of retirement of the partner. Okay.